تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرننگ عربک لینگویج کورس کے ایک اور ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ویڈیو جو ہے یہ چوتھا ویڈیو ہے اس کلاس کا، اس کورس کا. تو چلیے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. پچھلے چند اسباق میں ہم نے اسماء الاشارہ للقریب اور بعید پڑھے تھے. پھر ہم نے مفرد اور مرکب پڑھا. پھر ہم نے مرکب کی قسمیں پڑھی، مرکب تام اور مرکب ناقص. وہ سب اس سبق میں بھی دہرایا جائے گا، لیکن اس سبق میں ہم ایک اور نیا ٹاپک پڑھیں گے. اسے کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، یعنی مضاف اور مضاف الیہ. مضاف کسے کہتے ہیں، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، اور مضاف مضاف الیہ بنانے کا کیا طریقہ ہے. تو وہ ہم آج اس سبق میں پڑھیں گے. مزید ہم پچھلے اسباق میں جو ہم نے پڑھا اس کا ریویژن بھی کریں گے. تو چلیے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. الدرس الرابع، the fourth lesson. الدرس الرابع، the fourth lesson، یعنی چوتھا سبق. طائر معنی پرندہ. طائر پرندہ یا برڈ بھی ہم اس کو کہتے ہیں انگلش میں. اس کا جمع جو آتا ہے وہ آتا ہے طیور یا اطیار. طائر جمع طیور یا اطیار معنی پرندہ. سیارتن، سیارتن موٹر یعنی کار، موٹر کار. سیارتن موٹر، اس کا جمع جو آتا ہے سیاراتن. سیارتن جمع سیاراتن معنی کار. طیارتن، طیارتن معنی ہوائی جہاز. طیارتن ہوائی جہاز، ایئر پلین یا ایئر کرافٹ بھی کہتے ہیں یا ایئر پلین بھی کہتے ہیں. طیارتن ہوائی جہاز، اس کا جمع جو آتا ہے طیاراتن. طیارتن طیاراتن، ٹھیک ہے. اس کے بعد دراجتن معنی سائیکل. دراجتن سائیکل یا بائک بھی ہم کبھی کبھی اس سے استعمال کرتے ہیں، بائک کے لیے بھی. دراجتن سائیکل، لیکن اصل میں ہم سائیکل کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں. دراجتن سائیکل، ٹھیک ہے. اس کا جمع جو آتا ہے دراجات. دراجتن سائیکل جمع دراجات. پھر آتا ہے لبن معنی دودھ، ملک. لبن دودھ جمع البان، الف سے. لبن جمع البان معنی دودھ. دراجۃ زید، دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس سبق میں ہم ایک تو پچھلے اسباق میں جو ہم نے گرامر کے رولز پڑھے تھے، جو ہم نے گرامر کے قواعد پڑھے تھے، ان کا اعادہ کریں گے، ان کو بھی دہرائیں گے. مزید ہم اس میں جو نیا ٹاپک پڑھیں گے، نیا موضوع پڑھیں گے، وہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ مضاف اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، یعنی اس کی تعریف پڑھیں گے. بعد میں ان جملوں میں یعنی ان مثالوں میں ہم اسے بیان کریں گے. تو مضاف اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، جس اسم کی اضافت بیان کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں. یعنی دو اسم ہیں، ایک اسم کو کسی کی طرف نسبت دی جاتی ہیں، کسی کی طرف اضافت کی جاتی ہیں. تو جس اسم کی اضافت بیان کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کی طرف اس کا تعلق جوڑا جائے یا جس کی طرف اس کی اضافت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسا کہ عبداللہ، عبداللہ یعنی عبداللہ اللہ کا بندہ. بندے کو اللہ کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، یعنی اللہ کا بندہ، کہ یہ بندہ جو ہے یہ اللہ کا ہے. تو بندہ اس میں مضاف ہوا اور اللہ کی طرف اس کو نسبت دی جا رہی ہے تو اللہ مضاف الیہ بنا. اسی طرح رسول اللہ،
रसूलुल्लाह, तो ये अल्लाह का यानी अल्लाह का रसूल, इसमें रसूल जो है मुज़ाफ़ है क्योंकि इसकी इजाफ़त, इसकी निस्बत जो है अल्लाह की तरफ है और अल्लाह जो है इसमें मुज़ाफ़ इलै बन जाता है। तो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलै की आप चंद मिसालें मतलब चंद कवाइद ज़हन नशीन कर ले। जिस तरह हमारे इस सबक में ये दिया गया है कि दर्राजतु ज़ैदिन, दर्राजतु ज़ैदिन, ज़ैद की साइकिल, यानी साइकिल की निस्बत जो है ज़ैद की तरफ है, यानी ये साइकिल जो है ज़ैद की है। तो दर्राजतु माना साइकिल, ज़ैदिन ज़ैद की, दर्राजतु यहाँ पे मुज़ाफ़ हुआ और ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलै, यानी साइकिल को ज़ैद की तरफ इजाफ़त की गई। तो इसी तरह ये आप याद रखें कि मुज़ाफ़ जो होता है यानी अब्द जो हमने पढ़ा, रसूल जो हमने पढ़े या दर्राजतु, ये हमेशा नकीरा आता है, यानी आम हालत में ये नकीरा होता है। और मुज़ाफ़ इलै जो होता है वो मारिफ़ा होता है, यानी ख़ास होता है। मुज़ाफ़ नकीरा होता है और मुज़ाफ़ इलै ख़ास होता है। मुज़ाफ़ हमेशा मरफ़ू यानी हालत रफ़ा में आता है, यानी इसके आखिरी हर्फ पर पेश आएगा, ठीक है, हालत रफ़ा में होगा। या जो मुज़ाफ़ इलै है वो हालत मजरूर या हालत जर में आएगा, ठीक है। मुज़ाफ़ इलै मजरूर होगा यानी हालत जर ज़ेर के साथ, और मुज़ाफ़ जो होता है वो हालत रफ़ा में होता है। ये दो कवाइद आप याद रखें। तो मुज़ाफ़ वो हुआ जिसको इजाफ़त दी जाए और मुज़ाफ़ इलै जिसकी तरफ इजाफ़त दी जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम सबक पढ़ते हैं और आगे इसको बयान करते हैं। दर्राजतु ज़ैदिन, दर्राजतुन माना साइकिल, ज़ैदिन ज़ैद, यानी ज़ैद किसी का नाम है। दर्राजतु ज़ैदिन, ज़ैद की साइकिल। ताइरु हमीदिन, ताइरु परिंदा, हमीदिन हमीद नाम है किसी का। ताइरु हमीदिन, हमीद का परिंदा। देखिए ताइरु यहाँ पे मुज़ाफ़ है और हालत रफ़ा में भी है, ये नकिरा है, और हमीदिन मुज़ाफ़ इलै है तो ये मारिफ़ा है और हालत मजरूर में है। तो ये जो हमने मुरक्कब मुफ़रद और मुरक्कब पढ़ा है, ये दोनों जुमले मुरक्कब हैं, यानी इसमें दो इसम मिलते हैं तो ये मुरक्कब हुए, लेकिन मुरक्कब नाक़िस, क्योंकि इसका माना जो है पूरा नहीं होता है, यानी उसका मफ़हूम जो है मुकम्मल नहीं होता है, इसलिए मुरक्कब है लेकिन मुरक्कब नाक़िस। दर्राजतु ज़ैदिन, ज़ैद की साइकिल। ताइरु हमीदिन, हमीद का परिंदा। लबनु शातिन, लबनुन दूध, शातिन बकरी, बकरी का दूध। लबनुन मुज़ाफ़ और शातिन मुज़ाफ़ इलै। लबनु शातिन, बकरी का दूध। सय्यारतु खालिदिन, सय्यारतु गाड़ी मोटर कार, खालिदिन खालिद। सय्यारतु खालिदिन, खालिद की कार, खालिद की कार या मोटर कार। सय्यारतु मुज़ाफ़, खालिदिन मुज़ाफ़ इलै, लेकिन ये भी मुरक्कब लेकिन मुरक्कब नाक़िस। तय्यारतु ज़ैदिन, तय्यारतु हवाई जहाज़, ज़ैदिन ज़ैद। तय्यारतु यहाँ पे मुज़ाफ़ है और ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलै, यानी हवाई जहाज़ को ज़ैद की तरफ इजाफ़त दी गई है। तय्यारतु ज़ैदिन, ज़ैद का हवाई जहाज़। किताबु महमूदिन, महमूद की किताब। किताबु किताब, महमूदिन महमूद। किताब मुज़ाफ़ और महमूद जो है मुज़ाफ़ इलै है, तो यहाँ पे होगा किताबु महमूदिन, महमूद की किताब। कलमु सईदिन, कलमु सईदिन, सईद का कलम, कलम जो यहाँ पे मुज़ाफ़ होगा और सईद मुज़ाफ़ इलै। तो ये जितनी भी ये मिसालें थी ये सब मुरक्कब की थी लेकिन मुरक्कब नाक़िस की, क्योंकि इनका मफ़हूम जो है मुकम्मल नहीं हुआ। अब आने वाले जुमले जो हैं ये मुरक्कब ताम होंगे, यानी वो मुरक्कब जिनका मफ़हूम मुकम्मल होगा। तो अब हम इन जुमलों को पढ़ेंगे। हाज़िही कित्ततु अलीमिन, देखिए पहले हमने मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलै पढ़ा, पिछले असबाक में हमने मुब्तदा और ख़बर भी पढ़ा था। तो इस जुमले में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलै और मुब्तदा ख़बर भी हमने पढ़ना है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हाज़िही इसमें इशारा है लेकिन करीब के लिए मुअन्नस वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। फिर कित्ततुन माना बिल्ली, हाज़िही माना ये,
कित्ततुन बिल्ली, अलीमिन अलीम किसी का नाम है। हाज़िही कित्ततु अलीमिन ये अलीम की बिल्ली है। तो कित्ततु अलीमिन जो है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है, कित्ततु मुज़ाफ़ अलीमिन मुज़ाफ़ इलैह, इसका माना हुआ अलीम की बिल्ली, लेकिन हाज़िही की वजह से ये मुब्तदा ख़बर भी बन जाएगा। हाज़िही मुब्तदा, कित्ततु अलीमिन खबर, हाज़िही कित्ततु अलीमिन ये अलीम की बिल्ली है। तो हाज़िही यहाँ पे किसके मुताबिक आया है? मुज़ाफ़ के मुतल्लिक़। याद रखिए जब भी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह में इसमें इशारा दाखिल किया जाएगा तो वो मुज़ाफ़ के मुताबिक आएगा, यानी अगर मुज़ाफ़ मुज़क्कर हैं तो इसमें इशारा भी मुज़क्कर आएगा, अगर मुअन्नस है तो वो भी मुअन्नस आएगा, अगर वाहिद तस्निया जमा है तो इसमें इशारा भी मुज़ाफ़ के मुताबिक ही आएगा, मुज़ाफ़ इलैह के मुताबिक नहीं आएगा। तो माना हुआ हाज़िही कित्ततु अलीमिन ये अलीम की बिल्ली है। अगला जुमला हाज़ा ताइरु रफ़ीइन ये परिंदा रफ़ी का है। हाज़ा ये ताइरु परिंदा, रफ़ीन रफ़ी किसी का नाम है। हाज़ा ताइरु रफ़ीन ये रफ़ी का परिंदा है। तो ये भी मुरक्कब ताम जुमला है। हाज़िही दर्राजतु सलीमिन, हाज़िही ये दर्राजतु साइकिल, सलीम किसी का नाम। हाज़िही दर्राजतु सलीमिन ये सलीम की साइकिल है। हाज़िही दर्राजतु सलीमिन ये सलीम की साइकिल है। हाज़िही मुब्तदा, दर्राजतु सलीमिन ख़बर, और दर्राजतु मुज़ाफ़, सलीमिन मुज़ाफ़ इलैह। तिलका सबूरतु साजिदिन, तिलका सबूरतु साजिदिन, तिलका वो सबूरतुन बोर्ड, साजिद किसी का नाम। तिलका सबूरतु साजिदिन वो साजिद का बोर्ड है। तिलका सबूरतु साजिदिन वो साजिद का बोर्ड है। ज़ालिका सौरु शाहिदिन, ज़ालिका वो सौरुन शाहिदिन, सौरुन माना बैल। ज़ालिका सौरुन शाहिदिन वो शाहिद का बैल है। हाज़िही हसीरु मस्जिदिन, हाज़ा हसीरु मस्जिदिन, हाज़ा हसीरु मस्जिदिन ये मस्जिद की चटाई है। हसीरु माना चटाई, ये मस्जिद की चटाई है। हाज़ा हसीरु मदरसतिन ये मदरसे की चटाई है। हाज़ा हसीरु मस्जिदिन, हाज़ा हसीरु मदरसतिन ये मस्जिद की चटाई है और ये मदरसे की चटाई है। तो आप इन जुमलों में देख लीजिए कि इसमें इशारा जो आया है वो मुज़ाफ़ के मुताबिक आया है, मुज़ाफ़ इलैह के मुताबिक नहीं आया है। इसलिए ये आप जहन में रख लीजिए कि जब भी मुज़ाफ़ इसमें इशारा आएगा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह पे तो वो मुज़ाफ़ के मुताबिक ही आएगा। तो ये था आज का सबक और अब हम आज की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तमरीनुद्दर्स राबे, चौथे सबक की तमरीन या एक्सरसाइजेज। हाज़ा डैश डैश, देखिए शक्ल में बैल की तस्वीर दी गई है और फिर हाज़ा इसमें इशारा दिया गया है और उसके बाद नईम किसी शख्स का नाम दिया गया है। तो हमें इसमें इशारा है और आखिर में मुज़ाफ़ इलैह डाला गया है, तो हमें मुज़ाफ़ डालना है। हमें ये पहले ही सोचना है कि बैल को अरबी में क्या कहते हैं। बैल को अरबी में सौरुन कहते हैं। तो अब हमें ये मुज़ाफ़ इलैह बनाना है, एक मुज़ाफ़ इलैह बनाना, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह बनाना है। दूसरा हमें ये ख़बर और मुब्तदा भी बनाना है, यानी ये जुमला, इस जुमले में हमें मुब्तदा खबर जुमला होना चाहिए और मुज़ाफ़ इलैह भी होना चाहिए। तो हम कहेंगे हाज़ा सौरु, सौरुन नहीं आएगा, सौरु, हाज़ा सौरु नईमिन, हाज़ा सौरु नईमिन, सौरुन माना बैल, ये नईम का बैल है। सौरु नईमिन मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, हाज़ा सौरु नईमिन ये नईम का बैल है। अगला जुमला ये बिल्ली की तस्वीर है। अरबी में बिल्ली को कित्ततुन कहते हैं, तो हम कहेंगे हाज़िही, क्योंकि कित्ततुन जो है मुअन्नस है इसलिए यहाँ पे हाज़िही आएगा। हाज़िही कित्ततु खालिदिन ये खालिद की बिल्ली है। हाज़िही कित्ततु खालिदिन ये खालिद की बिल्ली है। अगले तस्वीर बोर्ड की हैं, तो हम कहेंगे हाज़िही सबूरतु हामिदिन, हाज़िही सबूरतु, अरबी में बोर्ड को सबूरतुन कहते हैं।
हाज़िही सबूरत हामिदिन, क्योंकि हाज़ी जो आएगा मुज़ाफ़ के मुताबिक आएगा, मुज़ाफ़ जो है सबूरत है। हाज़िही सबूरत हामिदिन, ये हामिद का बोर्ड है। ज़ालिका ताइरु सईदिन, ज़ालिका ताइरु सईदिन, वो सईद का परिंदा है, वो सईद का परिंदा है। हाज़ा किताब महमूदिन, ये महमूद की किताब है। हाज़ा किताब महमूदिन, ये महमूद की किताब है। हाज़िही इजाज़तु माहिरिन, हाज़िही इजाज़तु माहिरिन, ये माहिर का अमरूद है, ये माहिर का अमरूद है। हाज़ा किताब शाहिदिन, ये शाहिद की किताब है। हाज़ा किताब शाहिदिन, ये शाहिद की किताब है। हाज़ा उस्फूर शजरिन, ये दरख्त की टहनी है। हाज़ा उस्फूर शजरिन, ये दरख्त की टहनी है। अगली तस्वीर जो है साइकिल है, तो साइकिल को अरबी में दर्राजतु कहते हैं। ये जुमला हमें पूरा खुद ही बनाना है, तो हम कहेंगे दर्राजतु, इसका इसमें इशारा जो आएगा इसके मुताबिक आएगा, वो आएगा हाज़िही। तो हम कहेंगे हाज़िही दर्राजतु हामिदिन, हाज़िही दर्राजतु हामिदिन, ये हामिद की साइकिल है। हाज़ा मिज़नतु मस्जिदिन, ये मीनारे की तस्वीर है, तो अरबी में मीनारे को मिज़नतुन कहते हैं। तो हम कहेंगे हाज़िही मिज़नतु मस्जिदिन, ये मस्जिद का मीनारा है। अगली तस्वीर फ्रेम की है, अरबी में फ्रेम को इतारुन कहते हैं। तो हम कहेंगे हाज़ा इतारु नासिरिन, क्योंकि इतारु मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। हाज़ा इतारु नासिरिन, ये नासिर का फ्रेम है। हाज़ा इतारु नासिरिन, ये नासिर का फ्रेम है। फिर अगली तस्वीर जो है ये अनार की तस्वीर है। अनार को अरबी में रुम्मान कहते हैं, रुम्मानुन। तो हम कहेंगे हाज़ा रुम्मानु तारिकिन, ये तारिक का अनार है। हाज़ा रुम्मानु तारिकिन। तो फिर हमें अगला जो है उर्दू से अरबी में तर्जुमा करना है। पहला मदरसे का तख्ते सिया, मदरसे का तख्ते सिया, ये मुज़ाफ़ इलैह हमें बनाना है। तो पहले हम तख्ते सिया का तर्जुमा करेंगे, फिर मदरसे का। तो हम कहेंगे सबूरतु, सबूरतु मदरसतिन, क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ हालत मरफ़ू में आता है और मुज़ाफ़ इलैह हालत मजरूर में, यानी ज़ेर के साथ। हम कहेंगे सबूरतु मदरसतिन। अगला जुमला तख्ते सिया का चाक, चाक का तर्जुमा पहले, फिर तख्ते सिया। हक़्क़ु सबूरतिन, हक़्क़ुन माना चाक, सबूरतिन तख्ते सिया। हक़्क़ु सबूरतिन। खालिद की किताब, खालिद की किताब, किताबु खालिदिन, खालिद की किताब, किताबु खालिदिन। सईद का कलम, सईद का कलम, कलमु सईदिन, सईद का कलम, कलमु सईदिन, सईद का कलम। साजिद की दवात, दवातु साजिदिन, साजिद की दवात, दवातु साजिदिन। फिर बकरी का दूध, बकरी का दूध, दूध का तर्जुमा पहले, फिर बकरी का। तो हम कहेंगे लबनु शातिन, लबनु शातिन। सेब का दरख्त, सेब का दरख्त, शजरो, शजरो तुफ़ाहिन, शजरो तुफ़ाहिन। गाय का दूध, लबनु बकरिन, लबनु बकरिन, गाय का दूध। मदरसा, मदरसा की चटाई, मदरसा की चटाई। हसीरु मदरसतिन, हसीरु मदरसतिन, ये मस्जिद का मीनारा है, ये मस्जिद का मीनारा है। तो हम कहेंगे हाज़िही मिज़नतु मस्जिदिन, क्योंकि हाज़िही पहले हमें हाज़िही का तर्जुमा करना है, इसमें इशारा, फिर मिज़नतुन क्योंकि वो मुज़ाफ़ है, फिर मस्जिदिन वो मुज़ाफ़ इलैह है। तो हम कहेंगे हाज़िही मिज़नतु मस्जिदिन, ये मस्जिद का मीनारा है। तो ये था आज का सबक। तो आज का सबक हमने थोड़ा जल्दी में पढ़ा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर